Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to do question answer of chapter 2, science chapter 2, part A, B, C, D and E. So let's be started. Question of part A, fill in the blanks. Question number 1. The digestion of food in humans start in the dash and the completed इन द डैश। तो ह्यूमन जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, देन एंड कहाँ होता है? स्मॉल इंस्टेटाइन में जाके ये एंड हो जाता है, ये सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो माउथ। तो आंसर क्या होगा? माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 2, डैश प्रेजेंट in the stomach kills bacteria? Answer is hydrochloric acid. Okay, now question number 3, the largest gland in the human body is the dash? Answer is liver. तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो क्या है? लीवर। क्वेश्चन नंबर 4, partially digested food that the chewed given by grass eating, the dash? Answer is curd. Question number 5, amoeba used dash for locomotion and for captured its food. Answer is Basidiophilia. Okay, now question of part B, match the following. क्वेश्चन नंबर 1, गॉल ब्लैडर को मैच करेंगे नंबर ए से, 1 को मैच करेंगे ए से, बाइल जूस से। देन नंबर 2, प्रोटीन्स को मैच करेंगे ई, अमीनो एसिड से। नंबर 3, इंटेस्टाइनल वॉल, तो इसे सी से मैच करेंगे, एब्जॉर्प्शन। नंबर 4, र्यूमेन, तो इसे काउ, जो रिमेन है इट मीन्स जो च्यू करते हैं, जो काउ जो च्यू करती है फूड के बाद, तो उसे रिमेन कहते हैं। तो ये कौन करता है? काउ। क्वेश्चन नंबर 5, पिस्यूडोपोडिया, तो इसे मैच करेंगे फ्लैश फीड से। नाउ पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, organisms that can synthesize their own food are called? Right answer is autotrophs. Number 2, cow is an, answer is heterotrophs. Now question number 3, animals that can that eat both plant and material and animals are called? Answer is omnivorous. जो भी एनिमल्स और जो दोनों ईट करते हैं, देन एनिमल एंड प्लांट दोनों को ईट करते हैं, तो वो क्या होता है? तो ओमनिवेरियस होते हैं। नंबर 4, विच वन ऑफ दिस नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स? आंसर इज लीवर। नंबर 5, बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय द? आंसर इज लीवर। Now question answer of part D. Answer the following question in brief. Question number 1, define the following terms. Number A, hologic nutrients. Answer is, this is mode of nutrients in which organism eat like amoeba and human beings eat food that may be in solid or in liquid state. Number B, alimentary canals. Answer is, alimentary canal is the long muscular tube in the human body through which food passes after injection. Now question number 2, give the meaning of terms. Number A, assimilation. Answer is, the absorbed food is utilized
by the body for growth and formation of body parts. This process is known as assimilation. Now next, number B, rumination. The process of chewing curd, thoroughly in called rumination. जो कर्ड को च्यू करती है तो उसे ही rumination कहा जाता है. जो काउ जो है वो अपने फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और उसे वो बाद में जो है कर्ड च्यू करती रहती है. ये जो होता है इस प्रोसेस को rumination कहते हैं. Now next question, name the organs that make up the human alimentary canal. Answer is, the organs that make up the human alimentary canals are: number 1, mouth and buccal cavity; number 2, food pipes; number 3, stomach; number 4, small intestine; number 5, large intestine; number 6, anus. Now next question, state two difference between the milk teeth and permanent teeth. Answer is, milk teeth, they started appearing when a baby is 6 or 7 month old. बच्चे जब 6 and 7 months old के हो जाते हैं तो उसके बाद से उनमें जो ये प्रोसेस जो होता है अपेयरिंग शुरू होता है. मतलब निकलता नहीं बट वो प्रोसेस जो ये निकलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. देन दे आर 20 इन नंबर्स. ये 20 नंबर्स होते हैं. इसके जो मिल्क टीथ है वो 20 नंबर्स के होते हैं, 20 होते हैं. परमानेंट टीथ, दे स्टार्टेड अपेयरिंग व्हेन द चाइल्ड इज़ अराउंड द एज ऑफ 6 ईयर्स. जब बच्चे 6 ईयर्स के हो जाते हैं तो ये जो मिल्क टीथ है वो धीरे धीरे एक एक करके निकलता है. देन परमानेंट टीथ जो है वो निकलना स्टार्ट होता है. तो ये जो है इसके जो परमानेंट टीथ है ये 32 होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माउथ. आंसर इज, द 4 टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन माउथ आर इंसीजर्स, कैनन्स, प्रीमोलर, मोलर. ये जो है 4 टाइप्स हैं. इनके शेप इस टाइप में होते हैं. फर्स्ट है इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर, देन मोलर. मोलर जो है वो बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है. देन सबसे स्मॉल साइज़ जो है इंसीजर्स का होता है और कैनाइन्स जो है वो शार्प होता है, नुकीला टाइप का. इसे कट करते हैं. तो इस तरह से माउथ में, ह्यूमन माउथ के टीथ इस 4 टाइप्स के होते हैं, देख सकते हो. और सबका जो है वो इंसीजर्स जो है वो सबसे आगे में जो 4 है वो इंसीजर्स होते हैं. 4 अप देन 4 डाउन, दोनों साइड में 4 इंसीजर्स होते हैं. देन इंसीजर्स के जस्ट साइड में प्रीमोलर रहते हैं. ओके, प्री मोलर रहते हैं. देन उसके बाद जो कैनाइन्स होते हैं, उसके बाद आता है मोलर. मोलर जो है सबसे एंड में होता है और ये टोटल नंबर ऑफ 32 होते हैं इसके. Now next question, state the function of the incisors teeth and premolar teeth. Number A, incisors are used for cutting the food, then premolar are used for the grinding the food. तो इंसीजर्स का क्या यूज़ है कि फूड को कट करता है, मतलब पीसेस में डिवाइड करता है, कट करता है. देन प्रीमोलर जो है वो क्या करता है, फूड को ग्राइंड करता है, मतलब क्रश करता है, डिफरेंट स्मॉल पीसेस में उसको करता है, ग्राइंडिंग करता है, मतलब मिक्सअप करता है. नंबर 7, स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टमक. द रोल ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टमक इज टू kill the bacteria and also provide the acidic medium needed for the digestion of food by the enzymes in the stomach. तो इसका मेन यूज़ क्या होता है कि जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया है उसे किल करता है ये एसिड जो है, और फिर इसे एसिड जो है डाइजेशन, फूड डाइजेशन में ये हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, state the function of the bile juice and pancreatic juice in human. Answer is, the bile juice plays an important role in the digestion of fats. Number B, the pancreatic juice act on the carbohydrate, proteins and fat and break
them into simpler form. ओके, तो इसे ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है। ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसका ये रोल होता है। जैसे बाइल जूस का क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। देन पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, इसे क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है और सिंपलर फॉर्म में इसे करता है ताकि ये डाइजेस्ट हो पाए। नाउ आवर पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर इज completed. Next of D, E, answer the following question. Question number 1, draw a neat well labeled diagram of the human digestive system. तो इसमें क्या करना है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ड्रॉ करना है, डायग्राम बनाना है और इसमें जो है लेवलिंग करना है, मतलब सारे पार्ट्स को नेम लिखना है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे नेम हैं, तो आपको मेन जो है वो सारा कुछ लिख लेना, जैसे कि माउथ, फिर आपको फूड पाइप, देन उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंस्टेटाइन, देन लार्ज इंस्टेटाइन, देन ये सारा कुछ आपको लेवलिंग कर ले। इस टाइप से आपको नेम लिखते जाना है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ माउथ कैविटी जो है वो, देन ये फूड पाइप, लीवर, देन लार्ज इंस्टेटाइन, then gall bladder, liver, stomach, then pancreas, then small intestine and anus। ये जो है मेन पार्ट है। तो ये सारा लेवलिंग, देन ड्रॉ, ये जो है डायग्राम को ड्रॉ करना आना चाहिए, देन लेवलिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, crow is on omnivorous. Answer is crow is an omnivore because it feed on both plant and animal materials। तो crow क्यों omnivorous है, क्योंकि omnivorous जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों को ईट करते हैं, दोनों ही फीड करते हैं, तो इसलिए ये क्रो जो है वो omnivorous है। देख सकते हो कि क्रो जो है वो प्लांट को भी ईट कर रहा है ना, ये प्लांट को भी ईट करता है, देन ये एनिमल को भी ईट करता है, तो इसलिए ये ओमनिवोरस है। तो ये क्रो जो है ओमनिवोर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से इस पिक्चर के थ्रू भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि क्यों क्रो ओमनिवोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is said that the mode of nutrients in human beings and amoeba is quite similar। कैसे दोनों ही सिमिलर हैं, तो यस, nutrients in human beings and amoeba is quite similar। example, hologic mode of nutrients, they eat food that may be in solid and liquid form। दोनों जो है ये जो फूड जो है वो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म दोनों में ही ईट करते हैं। ये सिंपल में है क्योंकि आपको सिंपली आपको आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए, इंजेक्शन ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट ईट। तो कैसे बिना ईट के ये डिफ़िकल्ट है खाना, क्योंकि इंजेक्शन ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट टीथ is break down and food into smaller pieces which are easy to swallow। क्योंकि ये जो टिथ है इसके थ्रू क्या होता है, फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में पीसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जाता है, और उसके बाद इसे क्या करना है, स्लो करना इजी होता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर बी, इफ़ द च्यू राइस और ब्रेड फॉर अ फ्यू मिनट्स इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट। आंसर इज, if we chew rice or bread for a few minutes, it starts tasting sweet because saliva present in our mouth break down starch into sugar। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सलाइवा जो है हमारे माउथ में हमेशा रहता है, प्रेजेंट रहता है, और ये जो है वो ब्रेक करता है, देन स्टार्च जो है, शुगर स्टार्च जो है रिलीज़ करता है, जिसके कारण जो हमें टेस्ट है कुछ मिनट के बाद वो जो च्यू करते हो उसका टेस्ट जो है वो स्वीट लगता है। नेक्स्ट नंबर सी,
bacteria are present in the cecum, help in the digestion of the cellulose of the food. Next, explain how digest food gets absorbed into the blood. Answer is the inner wall of this small intestine absorbs the digested food. It has a large number of fingers like projection called villi. The villi in the effective surface area and absorption in digested food. This absorbed food is passes to blood vessels present in the villi. Next, state 1-2 sentence each of the various process involved in nutrients in ruminant animal. Answer is animal first swallow the food quickly and store in their rumen. The rumen has some microorganisms that help the partial digestion of the cellulose of the plant material. This food is now called curd. The ruminant later on bring this curd back in their mouth and chew the thoroughly. This process is called rumination. Ruminant also have a spacious back-like structure between their small intestine and the large intestine. This is called cecum. The bacteria present in the cecum help in further digestion of the cellulose of the food. ओके तो ये क्या होता है, एनिमल क्या करते हैं कि जो फूड ईट करते हैं वो उसे अपनी अंदर स्टोर कर लेते हैं, देन बाद में उसे ब्रेक करके पार्ट पार्ट में डिवाइड करके और उसे च्यू करते हैं. तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इसे कर्ड कहा जाता है. देन ये जो प्रोसेस है इसे रूमिनेट करते हैं कहते हैं. ये कर्ड जो च्यू करते हैं उसे कर्ड कहते हैं. देन जो ये सारा प्रोसेस है स्टोर करके रखना, देन उसे फिर से च्यू करना, ये सारा जो प्रोसेस है रूमिनेंट कहलाता है. और इस जो है इसमें क्या है कि इसमें रूमिनेंट के प्रोसेस में क्या है, स्पेसिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहता है उसके इंटरनल बॉडी में. देन उससे क्या होता है, ये जो बिटवीन देयर स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन, दिस इज कॉल्ड कैकम ऑफ द बैक्टीरिया. तो ये सारा प्रोसेस उसके थ्रू होता रहता है. नंबर 6, एग्जाम्पल इंजेक्शन ऑफ द फूड इन अमीबा थ्रू इन डायग्राम. आंसर इज व्हेन अमीबा कम इन कॉन्टेक्ट विथ फूड इट्स प्रोड्यूस्ड pseudopodia around the food particle. As the cell membranes of the pseudopodia fuels, the food gets trapped in food vehicle. Digestive juices are secreted into these vehicles to digested food. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.